Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Morning, sir. sir. Good morning, sir. Okay. Okay. So we are doing central force motion. Okay. And in the last class, we did the equivalence between electrostatics and gravitation. Okay. And we saw that how the gravitational mass is equivalent to a electric charge, and how their electrostatic potential, electrostatic field, and gravitational potential, gravitational field are related. Okay. And we saw the equivalence between charge and mass, k n minus g, and epsilon n minus 4 pi g. And similarly, this flux law and all these things. Okay. Both integral law and derivative law. Okay. और उसके बाद में हमने देखा था कि स्फेरिकल बॉल है, उसके जस्ट आउटसाइड कितना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, इनसाइड कितना होगा. सो ये सब चीजें हमने की थी, पोटेंशियल कितना होगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स लुक एट another topic concept in central force, which is Virial theorem. Virial theorem. Virial theorem. Okay. So this is a general theorem. Its scope is not limited to central force motion. Okay, it's a general kind of theorem. Okay, but we are going to apply that in central force motion. Okay. So Virial theorem says that if T is kinetic energy of the system, kinetic energy of the system. Okay. और सिस्टम आपका कुछ भी हो सकता है ना. तो सपोज एक जनरल सिस्टम है, the system of n particles, suppose n particles. If T is the kinetic energy of the system, and Fi is the force acting on Fi is the force acting on ith particle. Ith particle located at position Ri. Okay. So there is a system of n particles, and on individual particles there is a force Fi acting. Okay. So Fi is force acting on ith particle which is located at position Ri. Okay. Then the Virial theorem connects the averages. The average of T, matlab average of total kinetic energy of the system, is equal to
minus 1/2 average of summation I fi dot ri. Okay. So this is the statement of Virial theorem. Okay. That average of kinetic energy is minus half I summation I fi dot ri. और यहां पर जो है एवरेज है, okay, this is the sign of average. So this average is average is over a long period of time. Over a long period of time. For a general system. For a general system. And average is over a time period for a periodic system. So the system is evolving. Okay. So if we are talking about a general system, then the average is over a long period of time. But suppose the system is periodic. Okay. Then what happens? Periodic motion is what? That the motion will be repeated after some point of time, capital T. Okay. So over a long period of time क्या हो जाएगा आपका? T के ऊपर average, फिर वापस T के ऊपर average, तो overall T के ऊपर average ही हो जाएगा. Okay. So for a periodic system, the average is over a period of time. Okay. So this is the main theme of the Virial theorem. Okay. Now for our purpose, what? The statement last plus समझ में नहीं आया सर. Periodic system का क्या उसमें आप बता रहे हैं? Periodic system मतलब कि जो अपने आप को repeat करे एक particular time के बाद. हाँ सर. जिसका मोशन एक पीरियड, जैसे SHM हो गया, या फिर आपका अर्थ जा रहा है सन के अबाउट, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता है ना. सर इसको विरियल थ्योरम से कैसे आपने रिलेट करा? नो दिस एवरेज बोला विरियल थ्योरम के स्टेटमेंट में, जो एवरेज है ना. हाँ सर. इसको बोला है मैंने कि दिस एवरेज इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और वो सर किसी भी एक मतलब एक पीरियड के लिए है या फिर पूरे लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब किसी नहीं, तो मैं बता रहा हूँ ना कि पीरियोडिक सिस्टम के लिए दोनों बातें सेम हो जाएगी ना. पीरियोडिक सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा जनरली, तो ये एवरेज ऑफ टी इज इंटीग्रल टी dt बाय इंटीग्रल टी. हाँ सर. 0 से टाउ और 0 से टाउ, और टाउ वेरी लॉन्ग है, बहुत ज्यादा है. इन्फिनिटी भी ले सकते हैं क्या सर ऐसे? टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब काफी ज्यादा है. ठीक है. तो पीरियोडिक सिस्टम है, तो पीरियोडिक सिस्टम में इसको ये लिख सकते हैं 0 से टी dt, और यहाँ पे टी टाइम पीरियड है ना, टी नॉट बोल देते हैं. 0 से टी नॉट टी dt प्लस टी नॉट से 2 टी नॉट टी dt प्लस इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय इसको भी लिख सकते हैं 0 से टी. तो ये ओवरऑल आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 से टी नॉट टी dt बाय 0 से टी dt, क्योंकि ये रिपीट होता जाएगा अब, है ना. सो फॉर अ पीरियोडिक सिस्टम दिस एवरेज ओवर अ लॉन्ग टाइम इज सेम एज एवरेज ओवर अ टाइम पीरियड,
क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद वापस रिपीट हो जाएगा ना, तो वही वाली क्वांटिटी ऐड होती जाएगी, है ना। बट फॉर अ जनरल सिस्टम इट इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सर और यहाँ पे जो माइनस ऑफ सिग्मा एफ आई डॉट आ रही है वो तो पोटेंशियल एनर्जी है ना? नो, दिस इज नॉट अ पोटेंशियल एनर्जी। सर This मतलब is not a पोटेंशियल potential. एनर्जी को तो ऐसे ही डिफाइन करता है, मतलब नेगेटिव ऑफ वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने किया था ना नहीं पहले। नहीं, तो इसको हम आगे देखते हैं ना, अभी आगे एक्सपेंड करते हैं, एक बार रुकिए। ये बात Okay, क्लियर है कि नहीं? यस ठीक है, इसको अभी एक बार एक्सपेंड करते हैं। लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सर टाउ का कोई फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, टाउ टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके तो सिस्टम, जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स में देखा होगा, तो एक सिस्टम को बहुत लंबे समय के बाद देखते हैं ना, जब इक्विलिब्रियम में हो जाएगा वो। यस सर। ओके, लिख लिए ये। सर आपको स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, आपको इसके एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करना है। एज पर द स्टेटमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट द एप्लीकेशन ऑफ यूरियल थ्योरम इज इंपॉर्टेंट, दैट वी आर गोइंग टू सी। एप्लीकेशन सर जो आपने एवरेज वाला दिया है वही है ना मेन फॉर्मूला? हाँ, Average. नहीं नहीं, उसका हम आगे करेंगे ना अभी एप्लीकेशन। वो डिफाइन कीजिएगा। अच्छा हाँ, लिख लिए ये। यस सर। सर 0 से T नॉट नॉट क्या हुआ? कुछ नहीं, नीचे 0 से T नॉट लिमिट होगा ना dt का। हाँ, 0 से T नॉट। तो देखिए, अब सिंपलिसिटी के लिए लेट्स कंसिडर वन पार्टिकल सिस्टम। वन पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो वन पार्टिकल सिस्टम अगर करेंगे हम कंसिडर, तो आपका एवरेज ऑफ टी इज इक्वल टू -1/2 समेशन नहीं हट जाएगा, एवरेज ऑफ एफ डॉट आर। दिस जस्ट वन पार्टिकल। ओके, अब बताइए एफ कितना होता है? एफ होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ये होता है। सो व्हाट इज टी? यहां पर वी पोटेंशियल है, -12 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा आपका ग्रेडियंट ऑफ माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट आर। तो आपका टी हो जाएगा, आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 1/2, और आपका हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट आर। माइनस ऑफ वी ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट आर। सो ये आपका वन पार्टिकल के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब कंसिडर स्पेशल केस। कंसिडर V is, सर yes, सर इधर वन पार्टिकल सिस्टम है तो फोर्स कौन किस पे लगा रहे? वन पार्टिकल सिस्टम में तो जो सेंट्रल फोर्स में है, तो अर्थ घूम रही है, तो अर्थ पे फोर्स होता ना एक। ओके सर, मतलब सिर्फ हम लोग अर्थ को कंसीडरेशन में ले रहे हैं, सन को नहीं ले रहे। यस यस। ओके सर। कंसिडर V is a homogeneous function of degree n. Degree n. Okay. Homogeneous function of degree n का मतलब पता है सबको क्या होता है? बताइए क्या होता है? के एक्सटेंशन में सर इसके है ना? जितने तो n होंगे होमोजीनियस maximum फंक्शन power। का, सपोज V is a
फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड z। तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n का मतलब क्या है कि v इज अ समेशन ऑफ टर्म्स और हर एक टर्म में x y z की पावर का सम n है। समझ के बात? फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका v है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर, है ना? तो ये क्या है? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर x की 1 है, y की 1 है तो 2 है, और यहाँ पर y की 2 है। सो हियर n is equal to 2. Okay, this is a homogeneous function of degree 2. Okay. सर Yes. ऐसा हो सकता है क्या कि फंक्शन जो है बहुत इंडिविजुअल टर्म्स का समेशन है, पर सबकी ऐसा हो सकता है कि वैल्यू फंक्शन जो है जो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर है, तो हमने डिग्री 2 बोला, पर उनमें से कोई एक टर्म थर्ड डिग्री का होता तो हाँ। पूरे सिस्टम का डिग्री 3 हो जाता। नहीं, डिग्री 3 होता पर फिर होमोजीनियस नहीं होता, उसको होमोजीनियस नहीं बोल सकते। होमोजेनियस के लिए इस सारे समेशन मतलब हर प्लस प्लस से जो डिवाइडेड yes, पार्ट है yes. उसका डिग्री सेम होना चाहिए। यस, ओके। Yes, sir. तो होमोजीनियस फंक्शंस की एक प्रॉपर्टी होती है डिग्री n की कि ग्रेडियंट ऑफ v डॉट r इज इक्वल टू होता है आपका nv। ये प्रॉपर्टी होती है होमोजीनियस फंक्शन के ऑफ डिग्री n। अब देखिए इसको एग्जांपल से देखते हैं इसके लिए। अब v अगर ये है तो सबसे पहले बताइए r तो हमारा कितना है? r तो हमारा है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, है ना? r तो हमारी है। अब v अगर आपका ये है तो ग्रेडियंट ऑफ v क्या होगा बताइए? ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? del x by del y del x डेल v बाय डेल x i कैप प्लस del by del y डेल v बाय डेल y j कैप प्लस डेल v बाय डेल z, ठीक है? तो ग्रेडियंट ऑफ v जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डेल v बाय डेल x में क्या आएगा यहाँ पे टर्म्स? 2x plus 2x y plus plus y y, 2x plus y i कैप प्लस डेल v बाय डेल y क्या होगा? x plus 4 x प्लस 4y और y j ठीक है, प्लस डेल v बाय डेल z क्या होगा? 0 0 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ v डॉट r? तो ग्रेडियंट ऑफ v है, r ये है, तो i के साथ i वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, j के साथ j वाला और k के साथ k वाला, है ना? तो इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस xy। ये तो vx इंटू एक्स हो गया। अब vy इंटू y करेंगे तो क्या आएगा? xy प्लस 4y स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया? ग्रेडियंट ऑफ v डॉट r इज 2v आ गया कि नहीं? क्योंकि ये तो v है ना? तो जनरल आपका ग्रेडियंट ऑफ v डॉट r क्या होता है? n इंटू v, where n is the degree of homogeneous potential. लिख लीजिए इसे। अगर डिग्री 1 होता तो 1v, डिग्री 2 है तो 2v, डिग्री 3 है तो 3v। लिख लिया सबने ये? Yes, sir. ओके।
अरे यहाँ पे हमें किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट नहीं कैलकुलेट करना है ना, एज इट इज एक्सप्रेशंस को देखना है बस। हाँ, एवरेजिंग एक्सप्रेशन। ओके, लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, तो यहाँ पर आपका ये वाली क्वांटिटी का वैल्यू तो एनवी हो गया, तो आपका अब एवरेज ऑफ टी कितना हो गया? एवरेज ऑफ टी हो गया 1/2 पहले से था, और इधर है एवरेज ऑफ एन वी। ओके, so average of t is equal to n/2 average of v। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये t क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, और v क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिग्री n। डिग्री n। तो एग्जांपल देखते हैं अभी। तो ये है आपका वीरियल थ्योरम का फाइनल स्टेटमेंट, जो आपकी याद रखना है। एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज n/2 एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो एग्जांपल लिखिए। एक आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है, एक्सट्रैक्शन है m और k। ठीक है, तो आपको लिखाना है कैलकुलेट एवरेज ऑफ t in terms of total energy। टोटल एनर्जी। सर एक डाउट है सर। यस, सर मतलब मैंने अभी पूछा था ना कि माइनस ऑफ सिग्मा एफ आई डॉट आर हम लोग डायरेक्टली वी क्यों नहीं लिख सकते, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या माइनस ऑफ सिग्मा एफ आई डॉट आर मतलब एफ आई डॉट आर तो वर्क डन है, तो माइनस एफ आई सिग्मा। डॉट आर आई वर्क डन नहीं है। एफ आई डॉट आर आई वर्क डन थोड़ा था, एफ आई डॉट डी आर आई वर्क डन होता है। ओके सर, अच्छा मतलब एट दैट इंस्टेंस पे जो आर है उसके साथ बस डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वहां पे मतलब वहां पे ऐसा नहीं देख रहे कि एफ के साथ थोड़ा सा चेंज होगा डी, तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं है, पोजीशन के साथ डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट है। ओके ओके यस। तो ये एक तरह से आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में आप बताइए मुझे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी कितने डिग्री का फंक्शन है? सेकेंड। है ना? n इज इक्वल टू 2 है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका? n/2 पोटेंशियल एनर्जी एवरेज। तो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज n कितना है? 2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो एक पीरियड ऑफ टाइम जब हो जाएगा आपका, ऑसिलेट हो जाएगा, उसमें अगर एवरेज देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज सेम होगा। ओके, अब बताइए टोटल एनर्जी क्या होती है? T प्लस वी। एवरेज अगर लेंगे हम इसका, एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी इज एवरेज ऑफ T प्लस एवरेज ऑफ वी। और एनर्जी जो है ये एक सिस्टम की कंजर्व रहेगी, है ना? यस सर। यस सर। तो एनर्जी कंजर्व है तो कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो उसका एवरेज क्या हो जाता है? वही वाली क्वांटिटी हो जाता है, यस सर। है ना? तो E इज इक्वल टू T प्लस व्हाट इज V? V इज अगेन T। एवरेज ऑफ T इज इक्वल टू E/2। और यही का यही क्वांटिटी जो है एवरेज ऑफ V हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिस्टम की एनर्जी अगर E है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका काइनेटिक एनर्जी होगा E/2 और पोटेंशियल एनर्जी होगा E/2। तो
तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये प्रॉपर्टी होती है ना, आधा आधा होता है उसमें, काइनेटिक एनर्जी हाफ होता है और पोटेंशियल एनर्जी हाफ होता है। सर ये लास्ट वाला टर्म समझ में नहीं आ रहा है, उसको सेम एनर्जी को, टोटल एनर्जी को मैंने सेम ले लिया। क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है, अच्छा, ओके। एनर्जी कांस्टेंट है, जैसे कि कांस्टेंट टर्म है, मान लो 2, और 2 का एवरेज लेंगे तो वो तो 2 इंटीग्रल dt, तो इंटीग्रल dt कैंसिल हो जाएगा। ओके सर आपने v को t के साथ अपना डायरेक्टली कैसे रिप्लेस कर दिया? नहीं, v को t के साथ रिप्लेस नहीं किया मैंने, एवरेज ऑफ t इज एवरेज ऑफ t प्लस एवरेज ऑफ v, और Yes, यहां sir. से फिर मैंने लिखा है। ओके ओके सर यस, जो हमने जो लिखा है एवरेज ऑफ टी इक्वल टू एवरेज ऑफ v, तो एवरेज ऑफ टी इक्वल्स टू एवरेज ऑफ v जो लिखा है ऊपर, हाँ, तो इसका अगर एक कोई सिस्टम है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ऐसा कुछ सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये ऑसिलेट कर रहा है ना जब। मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा, मैंने किसी पोजीशन पे, कोई भी सिस्टम किसी पोजीशन पे नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी पोजीशन पे नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एवरेज एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। ओके, किसी पोजीशन पे थोड़ी बोल रहा हूं मैं। इंस्टेंटेनियस t इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस v नहीं है, एवरेज ऑफ t इज एवरेज ऑफ v। सर, लास्ट वाला सर एक बार फिर से बता दीजिए ना सर, वो समझ में नहीं आ पा रहा है। कौन सा वाला? सर लास्ट में जो आपने एनर्जी कंजर्वेशन वाला भी बताया था ना। ये वाला, ये हाँ वाला? सर, हाँ सर। हाँ, तो ये वाला टर्म तो क्लियर है। यस सर, वहाँ तक ठीक है। अब एवरेज ऑफ e इज e, यस सर। क्योंकि कोई क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है किसी मोशन में तो उसका एवरेज वही क्वांटिटी होती है ना। यस सर। मान लो कोई क्वांटिटी 10 है, अब 10 का निकालना है हमें एवरेज, तो इंटीग्रल 10 dt बाय इंटीग्रल dt, तो 10 तो बाहर आ जाएगा, यस सर। तो इसका एवरेज तो e हो जाएगा, इसका एवरेज t है और इसका एवरेज t यहां से देख लेंगे। यस सर। यस। लिख लिया सबने ये? यस। यस Okay. Now let's do one more question. Suppose आपका now in the case of gravitational potential. Gravitational potential. Planetary motion हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इज इक्वल टू कितना है? Gm1m2 माइनस gm बाय r, माइनस gm बाय r, है ना। तो अब देखिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में माइनस gm बाय r, तो v इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -1। ओके, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी है? -1 है, यस। है ना। और हमारा एवरेज ऑफ t क्या होता है? n/2 एवरेज ऑफ v। एवरेज ऑफ t इज इक्वल टू n इज -1, तो -1/2 एवरेज ऑफ v। तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है काइनेटिक एनर्जी, -12। तो अब E कितना होता है आपका? T प्लस V, है ना। तो अब देखेंगे एवरेज ऑफ E इज इक्वल टू एवरेज ऑफ T प्लस एवरेज ऑफ V। अब E जो है प्लैनेटरी मोशन में कांस्टेंट होता है, कंजर्व मोशन है यस। ना? हाँ सर। तो E आपका
एनर्जी हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ मोशन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ टी या टी को मैं लिख सकता हूं, टी को मैं लिख सकता हूं माइनस v बाय 2 प्लस v। तो आपका एनर्जी हो जाएगा आपका माइनस v बाय 2। सर प्लस v बाई प्लस होगा सर। हाँ प्लस होगा, प्लस v बाय 2। ठीक है, तो प्लेनेटरी मोशन में जो है आपका एनर्जी होता है v बाय 2, एवरेज ऑफ v बाय 2, और आपका जो ये होता है काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस हाफ एवरेज ऑफ v बाय 2। तो इसीलिए आपको याद होगा, आप एक बार रिकॉल कीजिए, जब सर्कुलर मोशन कर रहे थे हम, सर्कुलर मोशन कर रहे थे, तो v क्या था हमारा सर्कुलर मोशन में? r तो कांस्टेंट है, यस सर। तो v था माइनस जी एम एम बाय आर, है ना? अब ये तो कांस्टेंट है ना? तो यही हो जाएगा आपका एवरेज ऑफ v। अब रिकॉल कीजिए, उसमें वहां पे e क्या आया था? e आया था हमारा माइनस जी एम एम बाय 2 आर आया था। हाँ सर। अगर तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट v बाय 2। है ना? तो प्लेनेटरी सर। मोशन के लिए आपका ये है। लिखिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। सर यस, सर एन तो हम सर डिग्री दे के निकालते हैं, तो सर आप यहाँ पे आर की पावर को क्यों लिए? नहीं तो यहाँ पे r, यहाँ पे एक्स वाई की टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, r के टर्म्स में दिया हुआ है। यहाँ पर एक्स वाई के टर्म्स में नहीं दिया है, r के टर्म्स में दिया है। तो r की पावर होमोजेनियस है, मतलब r टू द पावर n है, r1, r टू द पावर 1, r टू द पावर 2, r टू द पावर 3। ओके। अगर सर अगर नॉन होमोजेनियस हुआ तो उसके में हम या अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल, फॉर्मूला लगाएंगे। अगर नॉन होमोजेनियस हुआ, क्या बोल रहे हैं आप? फिर से पूछिए। सर अगर नॉन होमोजेनियस हुआ तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो लगाएंगे। नहीं नहीं, नॉन नॉन होमोजेनियस हो तो आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, फिर स्टैंडर्ड वाला, फिर ऊपर वाला जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। ओके। लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सर अ पार्टिकल, a particle is moving, a particle is moving under a three-dimensional potential, under a three-dimensional potential, three-dimensional potential v xy is equal to x cube plus 3x square y plus y square x. Particle is moving in this three-dimensional potential. If total energy of the particle is E,
total energy of the particle is E, then or total energy of particle is E and mass m. And mass m. Mass. Then calculate the RMS speed of the particle. Calculate the RMS speed of the particle, VRMS. निकालिए सब लोग इसको, ट्राई कीजिए. I'll be coming just in 2 minutes. तुझको भुला के अब जाऊं देखती है जिस तरह से तेरी नजरें माइक बंद कर लो प्रेशर. fuck sorry everyone. अच्छा यार म्यूजिक ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಯಾಬ್ के नीचे पड़ी है खानी ढूंढनी पड़ेगी.
ओके, तो क्या है इसका आंसर? तो Root 60 by 60 by 5 है 5. उसका रूट। ओके, सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताइए, वीरियल थ्योरम कहता है कि एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज n/2 एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यहां पर n क्या है? 3 डिग्री 3 है, yes sir 3/2 तो T is 3/2 into V। अब आपका एनर्जी दिया हुआ है, टोटल एनर्जी इज T प्लस V। ओके, तो इसका एवरेज लेंगे, इज एवरेज ऑफ T प्लस एवरेज ऑफ V। अब एनर्जी आपका E दिया हुआ है, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ T प्लस एवरेज ऑफ V। तो एवरेज ऑफ V क्या होगा T के टर्म्स में? 2T/3 yes sir प्लस 2/3 इंटू T। तो आपका E हो जाएगा कितना हो जाएगा ये? 5/3। तो E इज इक्वल टू 5/3 और T क्या होता है आपका? हाफ mv²। हाफ mv²। तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/3। तो 5/6 और m बाहर आ जाएगा, एवरेज ऑफ V²। एवरेज ऑफ V² का आप क्या आ जाएगा? 6E/5। VRMS क्या होता है? रूट ऑफ 3 रूट ऑफ yes मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा VRMS? √6E/5। ये रहा था आंसर। हाँ सर। yes sir ओके, सर यस, सर अब असाइनमेंट डिस्कस नहीं करेंगे? असाइनमेंट डिस्कस अभी तो ये चल रहा है ना, आज खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने 8th वाला कर लिया है क्या? सर उसमें बहुत फंसा है क्वेश्चन हैं? 8.2 का। नहीं, 8th वाला मैंने दिया था तो आप लोगों ने कर लिया है, आप बोल रहे थे ना, नहीं किया अभी तक। यस सर कल। 8.2 ठीक है, सर टोटल नहीं हुआ पूरा नहीं। ठीक है। लिख लिया ये? यस सर ओके, अब अगला क्वेश्चन लिखिए। In a planetary motion, in a planetary motion, the semi-major axis, the semi-major axis of the elliptical orbit is given by सर पहले से रिपीट करना सर। क्या? पहले से रिपीट करना पहले पहले से रिपीट करना क्वेश्चन को। रिपीट कर दीजिए। रिपीट, अच्छा। इन अ प्लेनेटरी मोशन, in a planetary motion, the semi-major axis of the elliptical orbit is small a,
calculate the RMS speed of the planet in the orbit. सर Yes. सर इलिप्टिकल ऑर्बिट ईजे, तो उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा बता देंगे? इलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस ए है। यस सर। उसके बाद में आपको लिखना है कि VRMS क्या हुआ। सर एक्सेंट्रिसिटी दिया है। नहीं, तो देखिए प्लेनेटरी मोशन है, तो प्लेनेटरी मोशन में V होगा -GMM/r, है ना। तो इसका मतलब है कि V इज प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻1। इसका मतलब कि n की वैल्यू कितनी है? -1 है। हमारा वीरियल थ्योरम कहता है कि एवरेज ऑफ t इज व्हाट? n/2 एवरेज ऑफ v। n/2 एवरेज ऑफ v। एवरेज ऑफ t is n is -1, तो -1/2 एवरेज ऑफ v। Okay. Now the total energy E is T plus V. Okay. So average of E is average of T plus V. So this will be equal to E, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट है, is equal to average of T, और V क्या है? V is -2T। यहां से अब बताइए, प्लेनेटरी मोशन में हमने देखा था एनर्जी E क्या होती है? -GMM/2a होती है। Yes. लास्ट क्लास में देखा था हमने, है ना? सर इलिप्टिकल ऑर्बिट में -GMM/r1 + r2 होता था ना। तो R1 + R2 2a होता है ना। ओके सर, ओके ये सर, यस सर। दोनों फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, A वाला भी लिखवाया था और R1 R2 वाला भी। यस सर। तो -GMM/2a is what? -T। तो GMM/2a is equal to half mv²। m से m will be cancelled, तो average of v², 2 से 2 will be cancelled, is equal to GM/a। Okay. तो VRMS आपका कितना हो जाएगा? VRMS will be √of v² √of GM/a।
लिख लिया? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। Now we will do one more concept in central force, which is called as effective potential. Effective potential. सर प्रीवियस स्लाइड एक बार कर दीजिए। क्या हुआ? सर प्रीवियस स्लाइड एक बार कर दीजिए ना। ओके सर। इफेक्टिव पोटेंशियल के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। इफेक्टिव पोटेंशियल के बारे में it is introduced to mathematically convert. It is introduced to mathematically convert 2D central force problem, mathematically convert 2D central force problem into a 1D problem, into a 1D problem. ठीक है? तो सेंट्रल फोर्स में आपका एक प्लेन में मूव करता है तो 2D होता है, आर और थीटा, है ना? तो इफेक्टिव पोटेंशियल एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया है कि इफेक्टिवली हम 2D से 1D प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है ना? अब कैसे होता है देखिए। देखिए, तो आपका होता है FR is equal to M into AR. Okay. FR is equal to M into what is AR? R double dot minus R theta dot square. और आपका L क्या होता है? L MR स्क्वायर थीटा। अब FR जो है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस डेल वी बाई डेल आर। इज इक्वल टू MR डबल डॉट माइनस MR थीटा डॉट को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए? L बाय MR स्क्वायर। तो थीटा डॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर बाय M M स्क्वायर R4 R to the power 4। तो यहां से आपका आ जाएगा, इसको अगर मैं MR डॉट को इधर करूं तो MR डॉट, सॉरी जस्ट 1 मिनट, ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल आर और इज इक्वल टू MR डबल डॉट, और ये हो जाएगा माइनस एक M से एक M कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर बाय M R क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूं तो माइनस डेल वी बाय डेल आर प्लस L स्क्वायर बाय
mr cube is equal to mr डबल डॉट। अब देखिए यहां पर मैं एक तरीके से अरेंज करूंगा इसे, इसको मैं ये लिख सकता हूँ माइनस डेल वी बाई डेल आर, तो ठीक है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ माइनस एल स्क्वायर बाय ट्वाइस एम आर स्क्वायर, इसका डेल बाय डेल आर। बताइए लिख सकता हूँ सेकंड टर्म को ये? यस सर हाँ, इसको कैसे? ऐसे भी तो कर सकते हैं। इसको मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो r टू द पावर माइनस 2 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे mr क्यूब, तो mr क्यूब नीचे ऊपर एल स्क्वायर। समझ के बाद मैंने क्या किया? यस सर। है ना, इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट, है ना। तो यहाँ पे माइनस डेल बाय डेल आर है, यहाँ पे माइनस डेल बाय डेल आर, तो इसको लिख लेता हूँ माइनस डेल बाय डेल आर ऑफ वी प्लस एल स्क्वायर बाय ट्वाइस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं वी इफेक्टिव, तो आपका आ जाएगा माइनस डेल वी इफेक्टिव बाय डेल आर इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट। तो ये आ जाएगा आपका माइनस डेल वी इफेक्टिव बाय डेल आर इज एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट। जहां पर वी इफेक्टिव क्या है? वी इफेक्टिव इज वी प्लस एल स्क्वायर बाय ट्वाइस एम आर। तो देखिए हमने 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम से शुरू किया था आर थीटा पे, यहां पर 1D प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ आर है बचा है। समझ गए बात? तो सिस्टम को हमने इस तरीके से कर दिया है कि वो 1 डायमेंशन में चल रहा है, उसका कोऑर्डिनेट आर है, और वो चेंज वी इफेक्टिव की तरीके से हो रहा है। इफेक्टिव पोटेंशियल जो है वो वी इफेक्टिव है ना। तो पहले वाला पोटेंशियल तो था ही, साथ में एक और पोटेंशियल ऐड हो गया है, और सिस्टम जो है 2D से 1D में कन्वर्ट हो गया है, और कोऑर्डिनेट यहाँ पे आर है। तो किस तरीके से 2D से 1D में कन्वर्ट हो गया है ना, इफेक्टिवली। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या फिर इसका फिजिकल यूज है हम लोग बताते हैं? No, this is a mathematical concept for simplification. सर इफेक्टिव पोटेंशियल का सेकंड टर्म क्या सिग्निफाई करता है? L square by twice mr square. यस सर। हाँ, तो सर उसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है मतलब सर जैसे कि ये v तो पोटेंशियल है, तो वो मतलब पोटेंशियल नहीं, कैसे इंट्रोड्यूस? तो ये एक तरह से आपका आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम के द्वारा किस तरीके से आर पे फोर्स लग रहा है, उसका पोटेंशियल है ये इफेक्टिवली। घूम रहा है ना पार्टिकल, हाँ यस सर। पार्टिकल घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम के कारण किस तरीके से पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इफेक्टिवली, वो दर्शा रहा है ये। सर यस, जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है इफेक्टिव में एल स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर की वजह से उससे थीटा के ऊपर इसका डिपेंडेंसी खत्म हो गया, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी, हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया एक तरह से। मैं वही बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा पोटेंशियल की वजह से इसका थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो गया। हाँ हाँ, सही कहा आपने। तो हमने इफेक्टिवली 2D प्रॉब्लम को 1D प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सर हाफ एम आर डॉट स्क्वायर सर इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगा। हाँ हाँ, वही कर रहे हैं अभी, सही कहा आपने। ठीक। ठीक है, लिख लिए स्लाइड्स अपने? यस। अब बताइए, अब बताइए टोटल एनर्जी क्या होगा?
टोटल एनर्जी आपका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपका ई होगा। अब 2D प्लेन में काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ m, और 2D प्लेन में है तो r और थीटा दो कोऑर्डिनेट है, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? VR स्क्वायर। यस तो VR क्या होता है? r डॉट प्लस v थीटा स्क्वायर। v थीटा क्या होता है? आर थीटा डॉट r थीटा डॉट, r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका है v। तो वापस से हमारे पास इक्वेशन वही वाली है, कौन सी वाली? L इज इक्वल टू mr स्क्वायर थीटा डॉट। तो यहां से आपका थीटा डॉट अगर रिप्लेस कर दूं मैं यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा E इज इक्वल टू हाफ m r डॉट स्क्वायर, तो वही का वही हो जाएगा, प्लस दूसरा टर्म आएगा हाफ m r स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, यहां से रखूंगा तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर बाय m स्क्वायर r टू द पावर 4 प्लस VR। E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा आपका L स्क्वायर बाय ट्वाइस m r स्क्वायर प्लस V। अब ये क्या है? V इफेक्टिव है ना? तो आपका E कितना आ जाएगा? हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस V इफेक्टिव R। ओके, सर ये जो वी इफेक्टिव टर्म है वो सिर्फ थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। यस यस। सर तो मतलब अभी तक हमने जो भी एनर्जी कंजर्वेशन किया हाँ उसमें हम लोगों ने वी इफेक्टिव को कभी कंसीडर नहीं किया, वो क्योंकि थीटा थीटा कंपोनेंट नहीं था इसीलिए। नहीं, अभी तक हमने जो किया है उसमें हमने थीटा को एलिमिनेट नहीं किया था ना, सिर्फ r और थीटा दोनों के टर्म्स में कर रहे थे हम। मतलब सर इसमें नहीं, मतलब इसके पहले भी हम लोग किए थे ना, जब बॉल गिर रहा था या फिर ऐसे कुछ बाकी केसेस में। हाँ हाँ, तब नहीं किया था। हाँ मतलब तब थीटा कंपोनेंट नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने ये वी इफेक्टिव को कंसीडरेशन में नहीं लिया था। हाँ, थीटा कंपोनेंट नहीं था। ओके सर। ओके, लिख लिया सबने ये? यस सर। हो गया? सर ये 1D हम इक्वेशन बोल रहे हैं ना, 1D मोशन तो नहीं हो रहा ना इसमें? नहीं, Pendulum- 1D देखिए, इफेक्टिवली तो पार्टिकल 2D में घूम रहा है, बट हम यहाँ पर 1D में R में 1D देख रहे हैं, मैथमेटिकली R का चेंज देख रहे हैं। तो R में इक्वेशन आ गई हमारी, तो R में 1D इक्वेशन आ गई। Okay, sir. सर मतलब पार्टिकल 2D घूमेगा तो आपका मोशन 2D में ही, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने इफेक्टिव किया यहाँ पे तो वो पार्टिकल 2D से 1D में आ जाएगा, पार्टिकल 2D में ही घूमेगा। बट अब जो हम देखेंगे वो R के रेस्पेक्ट में देखेंगे, सिर्फ थीटा नहीं देखेंगे। हमारे थीटा पास नहीं क्योंकि है R डबल डॉट की इक्वेशन आ चुकी है। सर, वो थीटा टर्म जो है कि नेगलेक्ट हो गया, इसलिए 1D माना हाँ गया। हाँ, थीटा का टर्म हमने एलिमिनेट कर दिया है L बाय mr स्क्वायर से, इसीलिए वो इफेक्टिवली 1D में हमने R के टर्म्स में देखेंगे सिर्फ अब, कि R किस तरीके से चेंज हो रहा है। सर यदि मतलब 2D का तो एक प्रोजेक्शन सर्कुलर है मोशन 1D भी में ना, वही ना? क्या हुआ? 2D का प्रोजेक्शन है ये, ऐसे बोल सकते हैं 1D में। हाँ हाँ, सही कहा आपने, 2D का प्रोजेक्शन है 1D में। तो कुल मिला के अब हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ R वाला कोऑर्डिनेट स्टडी करेंगे, बात ये कह रहा हूं मैं, है ना? R वाला कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है।
क्योंकि इक्वेशन मिल चुकी है हमारी आर वाली। लिख लिया ये वाला स्लाइड। इससे ओके, तो अब एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वी इफेक्टिव है, इसको एक बार देखते हैं ड्रॉ कर। तो वी इफेक्टिव है आपका वी आर प्लस एल स्क्वायर बाय ट्वाइस एम आर स्क्वायर। तो देखिए हमारा वी आर कितना होता है प्लेनेटरी मोशन में, माइनस माइनस जी एम बाय आर, ये होता है, और ये वाला टर्म है आर स्क्वायर। तो अगर मैं वी इफेक्टिव का ग्राफ प्लॉट करना चाहूं टाइम के साथ, आर के साथ, तो कैसा होगा बताइए। सर जो सेंट्रल न्यूक्लियर फोर्स में जो होता है, जैसे क्या हुआ? नीचे से सर ऐसे तो कैसे बता सकते हैं? नहीं वही बता रहा हूं ना मैं कि इफेक्टिवली, अब मैं क्वांटिटेटिवली में क्वालिटेटिव पूछ रहा हूं कि क्या होगा। तो आपका वी इफेक्टिव आर जो है वो इस तरीके से है, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एल स्क्वायर बाय प्लस 2m आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वालिटेटिवली पूछ रहा हूं मैं। तो सबसे पहली बात तो आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। ठीक है, ओके। तो वी इफेक्टिव वर्सेस आर की हम ग्राफ की बात करते हैं। तो इस ग्राफ की बात करते हैं तो एक बार लिमिटिंग केसेस देख लेते हैं। तो मुझे बताइए कि r टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये ग्राफ किधर जाएगा? जीरो। सर नीचे से सर infinity तक। r टेंड टू इंफिनिटी पे ये 0 जाएगा यस सर, क्योंकि नीचे r है, जीरो और ये भी r टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 जाएगा क्योंकि नीचे r स्क्वायर है ना। अब बताइए वो 0 माइनस की तरफ से जाएगा कि प्लस की तरफ से जाएगा? एक माइनस माइनस की की तरफ से और एक प्लस की जीरो जो तरफ है से पार्ट में। माइनस की तरफ से जाएगा कि प्लस की तरफ से जाएगा? प्लस की तरफ से। प्लस सर की तरफ डोमिनेट कर रहा है माइनस वाला, प्लस माइनस की तरफ तो से। कुल प्लस मिला वाला के तो इसको ज्यादा सिंप्लीफाई dominate करने के लिए, इसको इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, सिंप्लीफिकेशन के लिए ना। दिस इज जस्ट फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ। क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 बाय आर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर। कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाना है हमें, है ना। -1 बाय आर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर, ये ग्राफ बनाना है हमें। तो बताइए r टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 तो जाएगा, क्लियर बात। अब वो 0 प्लस में जाएगा कि 0 माइनस में जाएगा? सर मतलब इधर से minus अप्रोच से करेगा जाएगा। कि इधर से अप्रोच करेगा, नीचे से? ऊपर से। प्लस में जाएगा। माइनस सर नीचे से। देखिए उसके लिए क्या करेंगे कि इंफिनिटी पे जाएगा तो दोनों तो 0 होंगे, बट दोनों में से बड़ा टर्म कौन सा होगा बताइए? 1 by r वाला ज्यादा R होगा। 1 बाय आर वाला बड़ा होगा, यस सर, यस है ना। मान ले बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं कि 1 बाय सपोज 10 टू द पावर 5 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 बाय 10 टू द पावर 5, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय 10 टू द पावर 10 हो जाएगा ना, है ना। यस सर। तो डोमिनेंट टर्म कौन सा, ये वाला है यस सर, है ना। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी नेगेटिव होगी, नहीं है ना। तो इंफिनिटी पे 0 तो जाएगा बट नेगेटिव से 0 जाएगा, है ना। तो नेगेटिव से 0 जाएगा, मतलब इस तरीके से। समझ गए बात आप, है ना। अब बताइए r टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू कहां पे अप्रोच करेगा ये? इंफिनिटी, देखिए पॉजिटिव r टेंड्स टू 0 पे ये वाला टर्म भी इंफिनिटी पे जाएगा और ये वाला टर्म भी इंफिनिटी पे जाएगा। दिक्कत यहाँ पर ये है कि एक माइनस में एक प्लस में है। तो बताइए कौन सा टर्म डोमिनेट करेगा, है ना। बताइए प्लस इंफिनिटी होगा कि माइनस इंफिनिटी होगा? प्लस इन्फिनिटी। प्लस वाला। प्लस तो 1 by देखिए r square down उसके लिए वापस से सिंपल सा तरीका है, r को बहुत छोटा रख के देख लेते हैं। तो r की वैल्यू सपोज रख के देख लेते हैं काफी छोटी, 10 टू द पावर -5 रख के देख लेते हैं। तो कौन सा टर्म डोमिनेट करेगा उसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 बाय 10 टू द पावर -5 प्लस 1 बाय 10 टू द पावर -10। तो ये हो जाएगा -10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 10। तो बड़ा कौन सा है, 10 to the power 10। ये वाला बड़ा है। तो पॉजिटिव टर्म डोमिनेट करेगा, है ना। तो ये पॉजिटिव होगा इंफिनिटी, तो पॉजिटिव इंफिनिटी है इस तरीके से।
0 पे। तो इधर तो ये जा रहा है और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब बीच में कहीं पे क्रॉस होगा, ये इस तरीके से होगा। समझ गए बात? है ना? तो ये बात क्लियर है आपको कि हमने लिमिटिंग Yes, sir. केसेस कैसे लिए हैं, यस सर। यस है ना? ओके, तो अब हम इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखेंगे। एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। ओके, अब बताइए ये मिनिमम कहीं पे होगा, किसी आर नॉट पे। तो किसी आर नॉट पे मिनिमम होगा, तो आर नॉट की वैल्यू कैसे निकल सकती है बताइए? मतलब वो वाली रेडियस जहां पर वी इफेक्टिव मिनिमम है। सर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर देंगे। फर्स्ट वहाँ डेरिवेटिव से 0 करेंगे, मतलब कि डेल वी इफेक्टिव बाय डेल आर एट आर नॉट इज 0। तो यहां से आर नॉट की वैल्यू निकल आएगी। अब बताइए अगर आपकी एनर्जी इतनी है ना, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल कर्व दिया हुआ है और एनर्जी कर्व दिया हुआ है ना? तो एनर्जी आपकी इतनी है तो केवल और केवल ये पोटेंशियल हो सकता है इसका, यस सर। है ना? इसका मतलब है कि वैल्यू कितनी हो सकती है उसकी, केवल और केवल आर नॉट, है ना? तो मतलब कि आर रेडियस की वैल्यू सिर्फ आर नॉट हो सकती है, आगे पीछे कुछ नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि मोशन सर्कुलर होगा। यस सर। यस सर। समझ गए बात? मोशन सर्कुलर होगा यहाँ पर। अब बताइए मान लो मैं एनर्जी की वैल्यू बढ़ाता हूं, तो एनर्जी की वैल्यू ये कर देता हूं मान लो। तो देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को ये दो जगह कट कर रहा है, एक यहां पर और यहां पर, है ना? यस सर। तो आर जो है किनके और किनके बीच में वेरी करेगा? सपोज दिस इज R1 और दिस इज R2। R1 और R2 के बीच में। तो R1 और R2 के बीच में आर वेरी करता रहेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि R1 और R2 के बीच में पार्टिकल वेरी करता रहेगा। तो वो Yes, sir. क्या होगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा जिसका R1 मिनिमम डिस्टेंस होगा और R2 मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। समझ के बात आप? दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट। सर ये सर्कुलर वाला दोबारा से बता दीजिए। जस्ट 1 मिनट। ओके, देखिए आपका इफेक्टिव पोटेंशियल ये आया है ना? यस सर। इफेक्टिव पोटेंशियल आपका ये आया है। तो हमने आपको पता होगा, देखा होगा कि जब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वाले ग्राफ कर रहे थे ना, जब, है ना? यस सर। तो उसमें हमने देखा था कि कोई पर्टिकुलर एनर्जी दी हुई है ना? तो हम ये देखते थे कि कोई पर्टिकुलर एनर्जी दी हुई है, सपोज ये आपका Vx ग्राफ है, तो कोई पर्टिकुलर एनर्जी दी हुई है, तो हम ये देखते थे कि पार्टिकल यहां से लेकर यहां के बीच में बाउंडेड मोशन करता था इस तरीके से, यस सर। है ना? तो एनर्जी अगर इतनी है तो यहां से यहां बाउंडेड करेगा, एनर्जी अगर इतनी है तो यहां से यहां बाउंडेड करेगा, मतलब क्या? एक्स की डिस्टेंस, ऐसी चीज। बट एनर्जी अगर इतनी है तो पार्टिकल केवल यहीं पे है, यस सर। इसका मतलब है कि उसका एक्स पोजीशन कांस्टेंट है। यस सर। यहां पर अगर एनर्जी सिर्फ इतनी है जो कि टच करके जा रही है, तो उसका आर कांस्टेंट है। यस सर समझ आर कांस्टेंट है ऑर्बिट में, मतलब कि वो क्या होगा? सर्कुलर। सर्कल होगा, है ना? अब थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाएंगे तो एनर्जी दो जगह कट करेगी, तो यहाँ पर आर यहां से यहां वेरी हो रहा है, तो ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। तो ये क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जिसमें हमने देखा था कि ये फोकस है, तो ये R1 है और ये R2 है। तो पार्टिकल जैसे जैसे इधर से बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी
डिस्टेंस जो है R1 से R2 की ओर बढ़ रही है, वापस से R1 जा रही है ना। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या हुआ? मतलब ये कर्व को मतलब वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या चीज शो कर रहा है वो चीज, हाँ, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये बता रहा हूँ कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक तो मिनिमम R1 पे कट करेगा और एक R2 मैक्सिमम पे कट करेगा। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो होगा वो होगा ये R1 मिनिमम ये होगा और R2 ये होगा, है ना। R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, तो मिनिमम R1 ये है और मैक्सिमम R2 ये है, तो R1 और R2 ये, ठीक है। और सर्कुलर केस में केवल R0 है, ठीक है। ओके, तो अभी अभी ये लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास से हम आगे इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो जो पॉइंट पे कट कर रहा है वो दोनों पॉइंट पे R1 और R2 पे एनर्जी उसका सेम होगा? एनर्जी तो सेम ही होगा ना, कांस्टेंट है ना एनर्जी। इलिप्टिकल ऑर्बिट में एनर्जी तो कांस्टेंट होता है। यस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे उसका हाँ। ये ऑर्बिट बढ़ते जाएगा, तो फिर इलिप्टिक। सर यस सर, हम उसका वी इफेक्टिव बढ़ा रहे हैं या टोटल एनर्जी को वहां पे बढ़ाने के देख रहे हैं? वी इफेक्टिव बढ़ा रहे हैं ना? नहीं नहीं, टोटल एनर्जी बढ़ा रहे हैं हम। सर तो एक्सेस तो है, वी इफेक्टिव रिप्रेजेंट कर रहा है ना? नहीं नहीं, बट टोटल एनर्जी बढ़ा रहा है तो वी इफेक्टिव मतलब यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होता है? हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस वी इफेक्टिव स्क्वायर। हाँ सर। तो जब मैक्सिमा या मिनिमम होगा तो r डॉट 0 होगा। हाँ सर। तो E इज इक्वल टू वी इफेक्टिव हो जाएगा वहां पे। हमने इस केस में देखा था ना कि इधर क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी 0 रहता था ना, और टोटल की टोटल पोटेंशियल में है। तो वही कंसेप्ट है। अच्छा सर, बाउंड मतलब एक्सट्रीमम पे देख रहे हैं कि वहां पे हाँ, से हाँ, वहां तक जाएगा वो। हाँ हाँ, और फिर सर R1 R2 बीच में बढ़ेगा ना, तब R डॉट नॉन जीरो होगा। तब वहां पे फिर काइनेटिक वाला पार्ट भी वहां पे रोल प्ले करेगा। हाँ हाँ। और सर R1 और R2 के बारे में आपने बताया कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में R2 ज्यादा वाला लेना है। सर वो फोकाई से हम डिस्टेंस मेंटेन कर मेजर करते हैं, तभी ऐसा फोकाई से, कर रहे हैं। हाँ फोकाई से। चलिए अच्छा, एक और बात आपने तो इसका भी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है सिर्फ सेंट्रल फोर्स का, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट अभी हमारे असाइनमेंट्स कौन कौन से बचे हुए हैं बताइए। 8.1 8.2 हाँ, तो वो आप लोगों ने कर लिया ना? सर किया है मेरे बहुत सारे क्वेश्चन। 8.1 और 2, तो 2 कोलिजन वाला सर जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। एट 8.2 के डाउट्स बताइए मुझे क्या क्या है, एक बार डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। 8.1 के तो अपने साथ बता दीजिए मुझे। क्या डाउट है 8.2 में, 1 से 4 में? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 सर। क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 to 10 में बताइए कौन सा डाउट है? 7 and 8। 5 to 10 में बताइए। 7 and 8। 7 and 7 6 भी है सर। 6 भी है। 11 to 17 में बताइए। 15। 11 to 17 में बताइए। 15। सर 30 बनवाए थे। 11 to 17 में कौन सा है? 15। 13 1 3 15। नहीं सर 15 15 1 5। ओके, और 18 to 22 में बताइए। 18 सर 22 20 भी ले लीजिए। क्या? 20 23 to 29 में बताइए। 28।
तो 84 का भी 27 मैच नहीं कर रहा है 32 39 में सर। यस 24 का सर आंसर मैच नहीं कर रहा था, इसे बनाए थे 32 39 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 35 31 35 28 सर 40 to 45 में बताइए 40 कौन सा 40 40 सर 43 में आंसर मैच नहीं कर रहा है सर। 44 में भी आंसर मैच नहीं कर रहा 44 सर 46 to 53 में बताइए 46 So 48. सर 49 53 MSQ में बताइए MSQ में 1 to 9 में बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 सर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में बताइए 6 3 सर 6 सर NAT में बताइए NAT NAT 1 to 10 में बताइए 3 हैं 3 सर 3 ओके 6 7 सर 7 नंबर ठीक है। और एक बार 8.1 के बताइए मुझे क्या डाउट्स था आपके 8.1 के सर आपने ले लिए थे हाँ पहले। तो एक बार फिर से बता दीजिए एक बार वो स्लाइड मेरी 1 to 8 में 8.1 1 to 8 में क्या है 3 कौन सा फिफ्थ सर 5th 3 3 3 8 8 2 नंबर भी बताया थे 2 फिफ्थ वाले का आंसर मैच नहीं कर रहा 9 to 18 में बताइए 13 13 और बताइए 15 15 सर 16 16 और 19 to 23 में 23 MSQ बताइए MSQ सर 20 MSQ में बताइए NAT बताइए NAT फर्स्ट क्वेश्चन NAT का कौन सा NAT का सर फर्स्ट क्वेश्चन ओके ठीक सर एक MSQ का लीजिएगा सेकंड नंबर MSQ का सेकंड यस सर ठीक तो और बाकी पीछे के हमारे हो चुके हैं असाइनमेंट्स यस सर ठीक है एंगुलर तो मोमेंटम अब आप लोग सेंट्रल फोर्स भी कर सकते हैं ठीक है तो 9.1 और 9.2 कर दीजिए आप स्टार्ट सर। आपने Yes. चैप्टर 5 का भी नहीं लिया सर असाइनमेंट सर अपलोड करवा दें तो अच्छा रहता। असाइनमेंट अपलोड वो सेंट्रल फोर्स है यार आप अभी तक वो पहुंच तो चुकी है ना आपके पास वो
मिला है सर, लेकिन उसमें मतलब नया वाला में कुछ तो किया है, ये जो 25 जुलाई से मिला है। ओके, तो कौन सा 9 वाला अपलोड कराना है? यस सर। ठीक, तो अब लोग आप लोग 9.1 और 9.2 भी कर लीजिएगा, ठीक है? सर आज का पीडीएफ अपलोड करवा दें। क्या हुआ? सर आज वाले इसका क्लास का अरे पीडीएफ पीडीएफ एक्चुअली क्या है कि इसमें से मैं देख रहा था, तो ट्राई कर रहा था, इसमें से वो पेनड्राइव में आ नहीं रहा है, तो मैं देख रहा हूँ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। सर यस सर ग्रुप में ऐड करवा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप टेलीग्राम चैनल में। हाँ, ये भेजा है ना किसी ने, ये टेलीग्राम। ओके सर, ओके सर। सर यस सर, प्लानिटरी मोशन के केस में एक आपने टर्निंग पॉइंट बताया था जब आप पोटेंशियल एनर्जी बता रहे थे, तो हाँ, उसको हाँ। सर कैसे समझ सकते हैं? तो सर वो वाला टर्निंग पॉइंट ग्राफ से मतलब जो आप यहाँ बता पर रहे थे। टर्निंग पॉइंट ये है, तो टर्निंग पॉइंट मतलब यहाँ की, वहां पर टर्निंग पॉइंट मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू बढ़ बढ़ के हो गई और फिर एक्स की वैल्यू कम हो रही है ना? टर्निंग पॉइंट ये होता था ना कि एक्स वैल्यू बढ़ रही है फिर कम होगी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट मतलब क्या है कि आर की वैल्यू बढ़ रही है और फिर कम होगी। तो मतलब यहाँ पर आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर यहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टर्निंग पॉइंट इस तरीके से, तो ये टर्निंग पॉइंट है एक, और एक ये टर्निंग पॉइंट है। समझ गए? यस सर। सर पोटेंशियल वाले पार्ट में स्टेबिलिटी एनालिसिस नहीं हुआ ना हमारा भी? कौन सा पोटेंशियल वाले पार्ट में सर स्टेबिलिटी एनालिसिस? पोटेंशियल वाले पार्ट में नहीं, पोटेंशियल वाले पार्ट में आप किस असाइनमेंट की बात कर रहे हैं? सर असाइनमेंट में नहीं, टॉपिक की बात कर रहा था मॉड्यूल से, उसमें भी एक स्टेबिलिटी एनालिसिस करके दे रखा है। नहीं, पोटेंशियल केस में हमने किया था ना वो कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है, नॉन इक्विलिब्रियम है, उसके अबाउट ऑसिलेशन तो क्या वही है होगा। ना सर, हाँ, मतलब वो हो रखा है ना। हाँ सर कुछ क्वेश्चंस रहे हैं उसमें भी सर, वो भी डाउट्स में आएंगे क्या उसमें? हाँ, ठीक है। तो वो किस में असाइनमेंट किस में बताइए ना। सर असाइनमेंट में मॉड्यूल की बात कर रहा था सर, मॉड्यूल चेक करा तो उसमें सर वो है कि कुछ सिस्टम्स है उनको स्टेबल है कि नहीं, या इक्विलिब्रियम है नहीं है, वो ऐसा करके कुछ उसमें हाँ, तो एनालिसिस इक्विलिब्रियम के करना लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई थी 2। था। हाँ सर, वो डेरिवेटिव लेके फिर वो करना हाँ था। हाँ, ओके सर। ओके, ठीक है जी। तो कल मिलते हैं फिर, है ना, क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। सी यू, बाय। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू। बाय।